नमस्ते, मेरा नाम मानसी डोभाल है। मैं पेंटिंग भी करती हूँ। अक्सर लोग मेरे को मेरी एक्टिंग और मेरी कलाकारी से ज़्यादा जानते हैं, बट पेंटिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक़ था। एंड अभी रिसेंटली 4-5 साल से आई एम इनटू पेंटिंग प्रोफेशनली, और मेरे बहुत सारे पेंटिंग एग्जीबिशन हुए मनमोहन जी के साथ, हमने काफ़ी करे हैं। एंड फिर से हमको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन करने का। एंड ये है मेरी आर्ट वर्क इधर, शिव जी की 2 ब्यूटीफुल आर्ट वर्क आई हैव। एंड मोस्टली मेरी आर्ट वर्क बहुत स्पिरिचुअल रहती है। मेरा थीम मोस्टली लॉर्ड शिव, गणपति और हनुमान जी से काफ़ी प्रभावित रहता है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ द डोमिनेंट थिंग इन ऑल ऑफ माई आर्ट वर्क। I work with mixed media on paper. This is charcoal acrylic on paper. Yeah, and I'm an artist who's been working and exhibiting for many years now, and this is my, I think, 5th or 6th exhibition here at Simrosa, great gallery. And yeah, this is based on my series called Black Beauty, based on Anna Sewell's book. Her classic book was called Black Beauty. That story really resonated with me and inspired me to make my entire series of horses, which are all black and white. I'm from Calcutta, West Bengal, Shikha Nandan, self-taught artist. This is my painting in acrylic on canvas. This is the theme of Prakriti at the rate eternity. Means our earth is moved at the change of velocity per unit time. There is an acceleration, and that make a momentum of a particle, and that time the motion in the earth and the change of nature, and also change the color. That color change my painting is come in this position. Different, I cannot give in dynamic motion, but I give it in static position. Different times, different color have got my paintings. Artist. So I have made this Shri Yantra, which is the root and the cause of every creation. So all my paintings are based on spiritual basis. If you observe every individual painting, it has some meaning in it. So if you, for example, if you take the Buddha, so I have shown the soul is aligned. So alignment of the soul. This if you see, observe carefully, this will give a family bond. The Adi Yoga, so he is the supreme creator. So I've highlighted all the certain areas of it. Srinath Ji, the god of adornment. So he will make you prosper. So basically I've made it with so much of feelings that the one who possesses it, has a feeling of happiness, auspiciousness, good health. So basically I have also come up with the Shri Yantra in the paper form. So once it's placed under you, it will give a feeling of positivity. So all these things help in your day-to-day living. And if every individual possess it, the world would be much better and people would be more positive. साद है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ और ये मेरी पेंटिंग है, ये है और ये है और ये है। मुझे पेंटिंग के साथ फीलिंग्स दिखाना बहुत पसंद है, और ये जो पेंटिंग है आप देख रहे हो जो सी साइड में बैठी है, वो सेल्फ हीलिंग के बारे में है। हमें मुझे पर्सनली लगता था कि अगर आप खुश रहते हो तो हमेशा किसी के साथ ही रहोगे तो खुश रह पाओगे, पर जब आप अकेले होते हो तब ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अकेले सेल्फ फीलिंग ज़्यादा होती है। तो यही मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। ये मिक्स मीडिया है, एक्रेलिक प्लस ऑयल है, और इसमें अब सावन का महीना चल रहा है तो शंकर भगवान की मैं भक्त हूँ, तो मैंने शंकर भगवान को बनाया है। और ये भी हीलिंग के ऊपर ही है, और इस पेंटिंग में हीलिंग विथ नेचर है। तो जब आप कभी भी अपसेट होते हो, सैड होते हो, और आप जब नेचर से कनेक्ट होते हो ना, आपको बहुत फ्रेश फील होता है। पानी में भीग जाओ या कहीं पेड़ पौधों में, फूलों में बैठे रहने से आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो इस पेंटिंग में मैंने नेचर के साथ दिखाया हुआ है कि आप जब भी नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। माय नेम इज सेज विद, और दिस पेंटिंग साज मैं आई बिलोंग्स टू मुंबई, और ये सारी पेंटिंग्स जो है ये इंटरनेशनल अवार्ड है। ये दिस इज़ गोल्ड मेडल, इस पर 2 बार मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और इस पे मिला है। मतलब काफ़ी पेंटिंग्स है जिस पे मुझे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू ऑल्सो। बहुत बड़ी बात है, और ये उनकी 19वीं एग्जीबिशन इन्होंने की है, और इसके पीछे मतलब एक चीज़ करने में मेहनत बहुत लगती है। आज हम जो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई महीनों की इनकी मेहनत होती है, और इतने सारे जो कि मुंबई से भी हैं और मुंबई के बाहर के भी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने अभी कलकत्ता वाले से भी मैं मिली,
तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को एकत्रित करना, मतलब हम ये कहते हैं ना कि किसी को, मतलब हम लोग किसी को ज्ञान दान देते हैं, किसी और तरीके भी कान दान भी हम करते हैं, लेकिन ये जो है शिक्षा का दान है एक तरह से। तो ये शिक्षा का दान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को एकत्रित करना। और उनके अलग अलग, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अभी मैंने एक शिव जी की पेंटिंग देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अलग है, पार्वती का रूप उसमें अलग है, शिव जी अलग हैं, गणेश जी हैं। ऐसे शिव जी की आप फैमिली भी आप देखेंगे ना तो हमें कुछ न कुछ कहती है। यहाँ पर सब विरोधाभास में है। आप देखेंगे शिव जी का जो वाहन है, शिव जी के गले में सर्प है, वाहन नंदी है उनका, और वहीं देखेंगे माँ पार्वती का क्या है, बैल है। तो ये आप देखिए शेर, नंदी, और फिर गणेश जी का आप देखेंगे चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, मोर और चूहा में भी दुश्मनी होती है, लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी इनका परिवार कैसे एक है, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। कि आज हमारे भी सब परिवार में हम रहते हैं, हमारे विचार अलग होते हैं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं, तो हमें लड़ना नहीं है, एकजुट होकर मतलब मिलकर रहना है। तो ये बात मैंने शिव जी की इस पेंटिंग से मैंने जानी। मैं जब यहाँ आती हूँ ना, जब भी चित्रकला के, तो मुझे क्या लगता है कि प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर अपना इत्र बिखेर रहा है। देव कन्याएं सी विचर रही हैं हवाएं, दिन में बरस रहा है धूप का पराग, और मन कुमकुमी बना रही है शान। कविता सा जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है अंधेरा, और चलकने लगा है चांदनी का अनुराग। अनगिनत पेंटिंग के संग, चित्रकला के संग, जहाँ पेड़ भी हैं, प्रकृति भी हैं, उनके संग घूमते हुए जिंदगी से न जाने कितना ही रेशम मांग लेने की जिद कर बैठता है मन। तो ऐसी ही होती है जहाँ चित्रकारी होती है, जहाँ आपको आकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आपका सारा तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और भारतीय परंपरा के अनुसार वह परम विद्या का ही सनातन पक्ष है। जब से जीवन शुरू हुआ है, जब से कला भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जो इससे परे हटकर जीने का सोचते हैं वो जीवन से कोई तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो कला के साथ संगीत हो, चित्रकला हो, कोई भी हो, कला कला है। वैसे तो कहते हैं कि बुलबुल के तरानों को भी कहीं सरगम की समझ दी जाती है, हीरे जैसी कनी को कहीं मोती की दमक दी जाती है। किस चित्रकार में जुर्रत। मैं क्या बोलूं, मन को मोहने वाला ये है मनमोहन। बिल्कुल। और हमेशा मेरा ख्याल से मैं तीसरी या चौथी बार आया हूँ यहाँ, और हमेशा इन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन हुआ इनके तो बहुत कमाल का, और जो भी उनके जितने भी उन्होंने चित्रकार जो रखे वो कमाल के थे, एक से एक उनकी कलाकृति है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं, अभी मेरा परिचय ऐसा है कि मैं अमिताभ जी के पास काम करता हूँ और एज एन मेकअप आर्टिस्ट काम करता हूँ। तो एक मेकअप आर्टिस्ट एक कला है, लेकिन चित्रकला और रियल कला ये दोनों कला एक जैसी है। इधर कला में जैसे सजीव किया जाता है, मतलब एक कैनवास पे एक सजीवनेस लाई जाती है। मेरा काम है जो सजीव है उनको और सजीव कैसे किया जाए और वो कैरेक्टर में कैसे जाए, ये ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने बच्चन जी के साथ करीब 50 साल काम किया है और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स या सारे जो चित्र है वैसे और भी मैं बच्चन जी के ऊपर करूं और बच्चन जी को ऐसा कोशिश करूं कि बच्चन जी दिखे ऐसे। और ये कलाकृतियाँ तो बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं, मन मोह लेती है, इसलिए मैं उनको मनमोहन कहता हूँ। तो मनमोहन जी ये जो करते हैं काम और लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों के साथ उनकी हमेशा ऐसे उनमें वो नहीं है कि जब भी देखो फोन करेंगे पूछेंगे, और बहुत ही मतलब मन के मिलनसार इंसान है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमको बुलाया और हमारे अच्छे उन्होंने लायक समझा और 2 शब्द कहने के लिए बोला, इसलिए धन्यवाद। मुंबई के जैन समाज की ओर से सभी कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मनमोहन जी आप आगे बढ़ो,
पूरा समाज आपके साथ में है। धन्यवाद। So much for everyone. Giving a platform to this beautiful artists. They're so beautiful from inside and outside, and you've been blessed by all of them. And it's raining outside. It's not a good weather, and still you've got so many people who've come to support you. And Manji is there to always support you. So you're blessed, and thank you. Keep up with the good work. Congratulations, and God bless you. And people have come from, as Manji said, from all over the country, just to take part in this exhibition. And you're a beautiful human being. Keep doing good work. Yes, God bless you, and God bless all the artists. This is so creative. I mean, I can't understand like how they can create and think like this. But I'm so impressed, seriously, and keep doing this good work, and you've got our support. मनमोहन सिंह जी ने मुझे भी इनवाइट किया। आई एम रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, जबकि जो इनकम टैक्स है वो ब्यूरोक्रेट होता है और आर्ट इज समथिंग डिफरेंट। बट मैंने आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स ऑल्सो। तो एक जो है इनकम टैक्स जो है, द टैक्सेशन इज ए वेरी ड्राई सब्जेक्ट, एंड इट गिव्स, I think so, it gives pain to the people. But whereas the art is something which gives pleasure to the people. So just, it is the balancing act. If somebody is having a passion for art, then it is a balancing act for even a bureaucrat. मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट इज बिगर देन द ब्यूरोक्रेट। आर्टिस्ट जो है वो सबसे बड़ा है। मैंने क्योंकि अभी शुरुआत की है इस फील्ड में, मेरी पेंटिंग जो है वो छोटी है, साइज में भी छोटी है, लेकिन इन आर्टिस्टों की कंपनी में रह के आई बिलीव मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी पेंटिंग भी बड़ा होगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव प्रतीक है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ एज एक्टर। अभी मेरी फिल्म आ रही है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू विद अक्षय कुमार, 5 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। तो अभी मनमोहन जी ने मुझे बुलाया इसके लिए, तो सभी आर्टिस्टों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई और कहीं ना कहीं पेंटिंग्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है देख के। लाइक 3D पेंटिंग्स हैं शिव जी के ऊपर है, जैसे मंजू जी ने बोला कि इतनी सारी फैमिली, चूहा हुआ, गणेश जी की सवारी और बैल हुआ, ये सब एक साथ रह रहे हैं। तो हम यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें सब साथ रहना चाहिए। और मनमोहन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड प्रेस वालों को, मीडिया वालों को, जो जिनके माध्यम से चीज़ें बाहर जाती हैं। आज हम एक कमरे में छोटी सी जगह में इतने लोग हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें जाएंगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो प्रेस वालों को भी शुभकामनाएं। I want to congratulate Manmohan ji. Of course, we had one Manmohan Singh, but according to me, he is Manmohan Keyur because he's concerned with art, and he's doing a fantastic work of getting all the artists together. And of course, the theme is that the colors of spring, and I think, as Kalidas said, Sarvam idam charu taram vasante. Because in the spring, everything looks even more beautiful. My congratulations to all of you. Hi, myself Anup Mastakar. I'm an art coach. I teach creative art all levels. My youngest student is 3 and my eldest is 81. I teach mothers, teachers, grandmothers, fathers as well. At my own place, I stay at Tardev Enterprise Apartment. Yeah, and I'm into jewelry as well. My brand name is Tama. So Tama Jewelry. Yeah, and yes, I want to congratulate Manmohan ji for this excellent work done by all the artists here. I'm truly aesthetic and elated and disproportionately bewildered with enormous gratification and dispensation of such a mesmerizing performance by all the artists here. And I'm sure sky is the limit. All the best. Wonderful exhibition. Thanks Manmohan ji Jaiswal for all the passion, efforts and making it a successful event. Amazing painters, amazing collection, and wishing them all the very best. And thank you Manmohan ji, the 10th consecutive year I'm as the guest of honor. Gratitude, looking forward to many more. Thank you. मनमोहन जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है एंड
मैंने काफ़ी पेंटिंग्स देखी, बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स है। और ऑब्वियसली आर्ट कुछ ना कुछ कहता है, जैसे मेरी फिल्म भी एक आर्ट ही है। और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और 4 दिन और है, सो प्लीज़ आइए और विजिट कीजिए। ग्रुप एग्जीबिशन एंड इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के आर्टिस्ट हैं, और इसमें मीडिया का भी हमेशा सहयोग रहा है। उसके लिए मीडिया वालों का भी बहुत धन्यवाद। और इतने सारे लोग मुझ पर भरोसा करके, बारिश के मौसम में भी इतने लोग आए हैं देश के कोने कोने से। मेरे एक मित्र अभी झारखंड से आए हैं, एक वो दिल्ली से आई है मैडम। तो ये लगाव है, लोगों का सहयोग है, उसमें मीडिया का भी नाम है, कुछ शहर के बड़े लोगों का भी नाम है। मीनू जी, ही इज़ माई ऑलवेज मेंटर, इज़ माई मेंटर एंड शी इज़ अ सिंगर, और इनका भी हमेशा बड़ा सहयोग रहता है। ये संगीत की एक शिक्षिका भी हैं, और इनका एक एल्बम भी अभी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये बोलो कि ये क्या सोचते हैं। मेरा नाम छाया साखरे है, मैं क्लासिकल सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, मतलब बचपन से इस फील्ड में हूँ। क्लासिकल डॉक्टर प्रभात जी के यहाँ सीखा है मैंने, वो मेरी गुरु हैं। और अनूप जलोटा जी अभी मेरे गुरु हैं, जिनके साथ मेरा भजनों का एक एल्बम आ रहा है, और जल्दी गज़ल्स भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और मैं प्राउड, मतलब प्राउड का मोमेंट है ये मेरे लिए। और मनु मोहन जी हमेशा मुझे अपने एग्जीबिशंस में बुलाते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, इसलिए मनमोहन जी को बहुत थैंक यू करती हूँ मैं। और आगे भी एक फिल्म आ रही है मेरी, दिव्य प्रेम मीरा, डिवाइन लव मीरा, हिंदी फिल्म। उसमें मैंने 4 सॉन्ग्स गाए हैं, और अच्छे सिंगर्स है उसमें। साधना सरगम जी है, श्रेया जी है, मधुश्री भट्टाचार्य जी हैं। तो वो भी बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे गाने का। तो आगे भी मैं ऐसे काम करती रहूँगी, और मनमोहन जी हमेशा मुझे एग्जीबिशन से बुलाते रहें, यही कामना करती है। और थैंक यू बोलती हूँ आपको सबको कि मनमोहन जी ने एक बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन खड़ा किया है, और पता चलता है कि उसमें काफ़ी मेहनत गई है, और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको सबके सामने पेश करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। मेरी 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ये है, सबसे पहले तो ये है कि मुझे एक किस्म का बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही डिवाइन है, मतलब कि बहुत ही मन को भाने वाला है, मन को छूता है। क्योंकि यहाँ जो पेंटिंग्स है अलग अलग पेंटर्स की और आर्टिस्ट की, उससे ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपना जान डाला है पेंटिंग में। तो एक किस्म का अपनापन, एक किस्म का खिंचाव है यहाँ, वो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ये है कि जो पेंटिंग्स का जो कॉस्ट है, प्राइसिंग या पेंटिंग का, वो एक्सट्रीमली मॉडरेट है, एवरेज है, बहुत नॉट वेरी मच ऑन द हायर साइड। तो वेरी वेरी रीजनेबली उनको प्राइस किया है। और लास्टली सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो मुझे एक्चुअली पहले एज पॉइंट नंबर 1 बोलना चाहिए था, वो ये है कि ये जगह से एक्चुअली बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है। इतना प्यारा और इतने पॉजिटिव एनर्जी ये रूम में है, यहाँ कोई अगरबत्ती या कोई सुगंध भी नहीं है, बट ये जो पेंटिंग्स की सुगंध इतनी बढ़िया है, मतलब यू फील सो गुड कि मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। सो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनमोहन जी, आपको एग्जैक्टली मालूम है कि किस किस लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। तो प्लीज़ आप 20th मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप प्लीज़ ये इसी वेन्यू पे कीजिए, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। Spiritual painter which is having a very good insight in our soul. Not only the nature painting is also very nice, the flowers and other colorful aspects of it which we used to see in Europe and many other places. But India is more famous for the spiritual aspect of a painting, and you have had in the painting which is astonishing. You can see
can do meditation even after, before, and get more and more ease of life, which will change your life and your family. So that is completely different. That is the true sense of our Indian that is what I have seen, which I like the most. I see a lot of paintings in abroad, in Basel World and many other places, Art Basel and Europe, many other old master painters, David Pinstone and many other museums also. But this I have seen here, which is very nice. That we have choice, which is the novelty of